और स्टोरी है, ठीक है, एक और केस स्टडी है. दिस केस स्टडी इज ऑफ यश महेश्वरी. एंड ये वो केस स्टडी है कि जैसे हाउ बीइंग इन कॉलेज ही कन्विंस हिज डैड इन्वेस्ट करने के लिए, हाउ ही स्टेड इन दैट इन्वेस्टमेंट एंड ही एब्सोल्युटली किल्ड इट. मतलब जब इसको मैं सुनता हूँ तो मुझे गूज़बम्स आते हैं स्टोरी से, राइट? सो प्लीज वेलकम Yash and give him a warm welcome to Yash. Yash. Hi, sir. So, hi everyone, how are you all? So, before I start off now, I just want all of you to turn on your cameras because I want it to be an interactive session. And give me these next 20 minutes to me, and I can bet जो 20 मिनट में आपको मैं वैल्यू देने वाला हूँ और जो लेसन देने वाला हूँ, it would be worth it. And at the end of my talk, I'm going to give you a very special tool that will help you to actually analyze top level management of any company, and that's really gonna blow your mind. So before I start let me tell you about myself. So my name is Yash Maheshwari, and right now I'm 21 years of age, and I started my stock market journey when I was around 17 or 18, around 4 years ago, with of course Harsh and Aditya Gola sir as a student. And now, right now I'm working at Gola School of Finance as a core team member, as a product designer and a developer. So basically I help the entire team to build various products so that we can actually help people in stock markets and train them and help them become profitable and successful investors and traders. So now, just like all of you know, I belong to a really middle class family, and since childhood I was a kid who used to be very curious, very who used to be जिसको materialist चीज़ों का बहुत शौक था. Like I wanted to own branded shoes, I wanted to own branded toys, and I used to feel jealous of my friends जो लोग branded चीज़ें afford, जिनके parents branded चीज़ें afford कर पाते थे, but I couldn't afford that. And I have been that kid since childhood, right? And of course my parents couldn't afford all of those stuff, all those things that I always wanted, and of course उसमें उनका कुछ fault नहीं है, right? But I used to feel really कि why is it कि हम लोग afford क्यों नहीं कर पा रहे हैं, why हम लोग middle class में क्यों फंसे पड़े हैं. And that's the point since my childhood that actually helped me realize कि नहीं यार, मुझे कुछ करना है. I want to have my own income, I want to become independent. And I hope all of you can understand this. Like when you are in your 20s ना, you feel like काश मेरे को खुद की एक इनकम होती, काश मैं कुछ ऐसा कर पाता जिससे I could manage my own expenses, right? Please raise your hand if you have ever felt like that in your college or school days. Yeah, exactly. So now अब बात करते हैं जर्नी की. Stock market is something that actually made me lakpati at the age of 20. In last 3 years, I was able to multiply my capital of 2 lakh rupees to almost 14 lakhs in just 2 years. And in those सालों में not only I got rich in terms of wealth, I really got actual rich in terms of mindset. And I got two of the biggest learning in my life जो मेरे को हमेशा आगे help करने वाली है, and that's what I'm going to share about that. So of course at the age of 17-16 आपके पास ना कोई knowledge होती है, ना कोई skill होती है, ना आपके कोई degree होती है. So no one is going to give you a job. So how to earn money? And stock market was something जहाँ पे I have seen people like जो इतने educated नहीं है, जो normal middle class family से आए हैं, like Vijay Kedia, right? Ramesh Damani sir, right? Rakesh Jhunjhunwala sir, right? And those kind of investors have created crores of wealth. And at the same time stock market में ऐसे लोग हैं जो बहुत highly educated है, हार्वर्ड स्कूल से पढ़े हुए, CAs हैं, MBAs है, बट दे एक्चुअली फेल्ड एट स्टॉक मार्केट्स. सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड यार ऐसा क्या है स्टॉक मार्केट्स में, ऐसी क्या चीज़ है, क्या हो रहा है जिसकी वजह से लोग इतना मतलब इट्स अ वेरी अपोजिट थिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड दैट्स व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड डिगिंग डीपर. And at 11th Serena, I started watching a lot of interviews of great and successful investors like Rakesh Jhunjhunwala, Vijay Kedia, Ramesh Damani sir, right? And what happened now? I used to watch these interviews like 4 से 5 घंटा डेली बेसिस पे, so much so that मैं 11th स्टैंडर्ड में 4 सब्जेक्ट में फेल हो चुका था. एंड आई नाउ रियलाइज कि वो कितनी अच्छी चीज़ थी. आई विश लाइक आई एम सो ग्लैड कि मैं फेल हो गया उन सब्जेक्ट्स में. आई यूज टू वॉच इंटरव्यूज बिकॉज उन नॉलेज से उससे मेरा जो माइंड सेट बिल्ड हुआ है, दैट्स द रीजन आई एम सिटिंग राइट नाउ हियर एंड शेयरिंग माई नॉलेज विद यू. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द प्रेजेंटेशन फर्स्ट. सो ओके, so my 2 biggest life lessons I learned from stock markets that completely changed my life. सबसे पहला लेसन बहुत कॉमन है, एंड दिस इज समथिंग जो इमोशनली आपके लिए बहुत या आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, राइट? ओके, सो सबसे बड़ा लेसन है
जो आई फील ना बहुत लोग इस चीज़ में अटकते हैं। आप सबने सुना होगा अपने आसपास फैमिली मेम्बर्स से, नेबर्स से कि यार मैंने येस बैंक खरीदा था, मैंने सुजलॉन्ग खरीदा था, वो बेचारा 50 रुपये का स्टॉक 5 रुपये पे आ गया, मैं अभी तक होल्ड करके बैठा हूँ। स्टॉक मार्केट जुआ है यार, यहाँ पे तो आना बेकार ही है। सारे स्टॉक ऐसे 50-100 से ऐसे गिर के 2 रुपये हो जाते हैं। एंड आई टेल यू वन थिंग, वो स्टॉक्स 50 से 5 नहीं हुआ है, वो स्टॉक 50 से 5 अपने आप में उसको आपने किया है। एंड आई विल गिव यू द एग्जैक्ट एग्जाम्पल फ्रॉम माई रियल लाइफ। इन 2020 August 2020, if you all remember about Future Retail, have you heard of this company Future Retail? Please raise your hands. Yeah. So I hope all of you must remember कि Future Retail में ना न्यूज़ आई थी कि Reliance is going to buy the Future Group at 25,000 करोड़ का डील। एंड ऑफ कोर्स आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर उस टाइम पे एक न्यूज़ में था कि यार रिलायंस तो इसका पूरा फ्यूचर बदल देगी, पूरी डेट वाली कंपनी को तो प्रॉफिट बना के तो पूरा वॉलमार्ट जैसा, डीमार्ट जैसा खड़ा कर देंगे, राइट। एंड उसी दौरान मेरे पापा हु इज़ अ कंप्लीट बिगिनर इन स्टॉक मार्केट, उनको स्टॉक मार्केट का ए भी नहीं पता है, एंड वो अपने ऑफिस में ये सब बातें अपने फ्रेंड्स नेबर से सुन रहे थे। एंड ही केम टू मी वन डे एंड ही टोल्ड मी, यार यश हमें फ्यूचर रिटेल बाय करना है, मैं तेरे को 50,000 रुपये दे रहा हूँ, इस स्टॉक को बाय कर। आई टोल्ड हिम, पापा प्लीज़ कभी भी इस पर मत पढ़ना, बिकॉज द थिंग इज द कंपनी के पीछे 90% लोग भाग रहे हैं, 90% जनता इज ऑलवेज गोइंग टू लूज मनी। एंड सेकंड थिंग इज कंपनी फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो भले रिलायंस है, कोई भी ग्रुप आए, डोंट बाय द स्टॉक अनलेस द कंपनी इज प्रॉफिटेबल। बट ऑफ कोर्स आई डेंट हैव द अथॉरिटी इन माई हाउस, राइट, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। आई वॉज एट दैट टाइम जस्ट लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट्स, राइट। माई फादर टोल्ड मी कि मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे दोस्तों ने बोला टिप आई है तू कर। आई टोल्ड हिम कि चलो ठीक है पापा, ट्राई करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो ही गेव मी 50,000 रुपीज़ एंड मैंने अपने डीमैट अकाउंट में फ्यूचर रिटेल शेयर्स खरीदे एंड आई बॉट द स्टॉक एट 125 रुपीज़ पर शेयर। अराउंड वी बॉट 50,000 के शेयर्स एंड विद इन फ्यू डेज ना द स्टॉक पीक्ड एट 158, इफ यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। उस पॉइंट पे मेरे पापा ने देखा, मैंने बोला था ना तेरे को कितनी बढ़िया टिप आई, रिलायंस को कहाँ से कहाँ लेके जाने वाला है। अब देखिए 150 से 200-300 भी हो सकता है। यू आर ऑल हैप्पी कि 10-15 दिन में हमारा ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट 50% राइज कर चुका था, 30-40%। एंड वी आर हैप्पी यार, 50,000 रुपये हमने 10-15,000 रुपये का प्रॉफिट बना लिया। एंड यू आर थिंकिंग यार चलो सही है। एंड सडनली ना आफ्टर फ्यू डेज द स्टॉक पीरियड एंड स्टार्टेड फॉलिंग एंड वो वापस 120-125 की रेंज में आया। एंड वी वर लाइक कि चलो कोई नहीं, स्टॉक तो बढ़ता रहता है, ऊपर से जाते रहता है। मेरे पापा वॉज लाइक इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसको होल्ड करते हैं। विद इन 1 month, ऑलमोस्ट 1 or 2 months, the stock went to 80 rupees. We are on a loss of around 50% on a capital of 50,000. ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के अंदर ना 25,000 रुपये ऑलमोस्ट खो चुके थे। एंड आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड 25,000 रुपये फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एंड जस्ट इमेजिन उस टाइम पे क्या माइंडसेट रहा होगा। I was also already being mentored by a lot of people through interviews, and I was, of course, under the mentorship and guidance of Harshan Atta sir right that time. But my father was not at all educated about stock markets, and this is the difference between my mindset at that point and my father's mindset at that point. I realized कि यार हमसे गलती हो चुकी है, we need to improve that. But at the same time, my father was like, how can I go wrong यार? I must be right. मेरे को Reliance पूरा भरोसा है. I was ready to bear the loss. Because I had accepted my, fault. At the same time, my father was, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैं पैसा नहीं हार सकता यार, मेरे को शेयर्स लॉस में बेचने ही नहीं है। उनका ये माइंडसेट था। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद 90% पीपल, एक्चुअली इट्स अ फैक्ट। व्हाट आई डिड नाउ उस टाइम पे आई वाज थिंकिंग कि यार व्हाट इफ मैं इन शेयर्स को सेल कर दूँ यहाँ पे, एंड इफ आई गेट अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी, फंडामेंटल ग्रेट स्टॉक, आई कैन रिकवर माई मनी, राइट। एंड माई फादर का माइंडसेट वाज लाइक यार वेट करते हैं, बिग बाजार है, रिलायंस ग्रुप साथ में आए हुए हैं, वी हैव सम फेथ इन दैट, ओके, सो लेट्स नॉट सोल्ड द शेयर्स। माई माइंडसेट वॉज कि यार मेरा मनी ग्रो नहीं करेगा अगर मैं किसी स्टॉक में डाल दूंगा, बट एटलीस्ट वो सेफ तो रहेगा और तो नहीं गिरेगा। बट माई फादर वॉज लाइक वन डे शेयर्स तो वापस बढ़ जाएंगे। देन कुछ दिनों बाद ही न्यूज़ आई, मुकेश अंबानी लॉस्ट, रिलायंस कैंसिल्स 24,000 करोड़ फ्यूचर ग्रुप डील। And what happened? Right now, if you see, future का price is around 4 rupees. But of course, मैंने वहाँ पे नहीं बेचा. I sold the stock at 80 rupees
And at that same time, na, I bought Bajaj Finance in around September 2020. I bought Bajaj Finance at around 2500 rupees per share. जो भी मैंने लॉस के शेयर्स बेचे थे 25,000 से कैपिटल से मैंने बजाज फाइनेंस की कंपनी के शेयर्स बाय करे. Within 6 months तक the stock went from 2500 to almost 6 to 7,000 rupees. My investment got doubled. I was in a profitable situation once again, and I recovered all of my money. And आज stock future rate का price is 4 rupees only. That's what a great mindset does to you in stock markets. Can you please tell me how much of you were holding, Future Retail or Yes Bank, these kind of stocks? Please let me drop in the comment section, right? I want to see. Because the thing is, if you are still holding these kind of stocks in your portfolio, ना 2-4 रुपए लेके बैठे और सोचो कभी बढ़ जाएगा. I'm telling you, just sell these stocks and grab a new opportunity. Use the filters, use all the knowledge that you have gained in the last 2 years, right? And invest that money in the right kind of stock. Now, let's come to the second lesson of my life. Second biggest lesson in stock market ना, it doesn't matter कि आप कितना रिटर्न कमाते हो, 5 गुना, 10 गुना, 15, 20 गुना, that doesn't matter. What actually matters is how much money you are actually investing in the stock, because that shows the confidence that you have on that stock. There are a lot of people in my life, मेरे friends and neighbors में जो लोग मेरे को आके बोलते कि यार यश मैंने देख ये स्टॉक में पेनी स्टॉक खेला 10 गुना हो गया आज वो 5 गुना हो गया, 10 रुपये के शेयर 100 रुपये हो गया. I just ask them one thing, यार वो सब छोड़ो, मेरे को बता आपने पैसा कितना लगाया था. एंड दे टेल मी यार मैंने 10,000 रुपये के लिए थे, पेनी स्टॉक था ना 15,000 के लिए थे. एंड आई जस्ट रिप्लाई देम बैक कि यार 10,000 रुपये लगा के आपने 10 रुपये का स्टॉक लिया जो 100 रुपये हो गया, अब 10,000 से 1 लाख तक तो पहुँचो, वेल्थ तो क्रिएट हुई नहीं है, क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू इन्वेस्ट दैट इन अ गुड क्वालिटी कंपनी जिसमें आपको पता है फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, कंपनी इज गुड, मैनेजमेंट इज गुड, राइट, इन दैट कंपनी यू कैन इन्वेस्ट 1 to 2 लाख रुपीज़, और वो 2-4 गुना भी होगा ना, स्टिल यू मेड टिल 5 to 6 लाख रुपीज़. एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई डिड in September 2020 when I invested in a company called Tata Elxsi. The journey of my multi-bagger in Tata Elxsi of 2 years, and I was able to scale it to from almost 2 lakh capitals to more than 10 lakh rupees. And at the same time, इसी stock मैंने trade करके I also made 1 lakh of profit separately. And I'll tell you a very interesting incident, right? But when I was doing my research on Tata Elxsi ना, I was doing a lot of in-depth research on that company. मेरे को 1 महीना लगा था पूरा कंपनी को स्टडी करने में. एट द सेम टाइम one of my friend came to me, यार यश मेरे को कोई स्टॉक बता, आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स एंड आई वांट टू मेक मनी. आई टोल्ड हिम कि यार देख टाटा एलेक्सी इज अ कंपनी जिसमें मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, आई फील ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 1150 रुपीज़. ओके, एंड आई टोल्ड हिम टू बाय द स्टॉक, राइट, एंड आई टोल्ड हिम कि यार मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो. ही वॉज लाइक अरे कोई नहीं, तूने बताया ना, मैं इसमें मेरे को भरोसा है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा. आई वॉज लाइक ओके. उसके पास 1 लाख की कैपिटल थी, इन्वेस्टेड अराउंड 10 to 15,000 रुपीज़ एट 1150 के प्राइस पे. एंड आई हैड अ कैपिटल ऑफ अराउंड 2 लाख रुपीज़ एंड आई इन्वेस्टेड 2 लाख ऑफ माई कैपिटल इन दिस स्टॉक ओनली बिकॉज आई वॉज वेरी सुपर कॉन्फिडेंट ऑन द स्टॉक. एंड आई टेल यू द रीजन मैं कॉन्फिडेंट क्यों हुआ इन द अपकमिंग प्रेजेंटेशन इन स्लाइड्स. Right, this is the journey. I bought around 168 shares at an average price of 1,500 rupees. So मेरी investment value is around 2,52,000 rupees. I borrowed this money from my parents. And जब से वो बजाज फाइनेंस का इंसिडेंट हुआ, my father was fully confident on me. He was like यार तेरे को जितने पैसे लेने हैं ले रहे, तू जा और तू करेगा, फोड़ेगा. मैंने कहा ठीक है फोड़ते यार. तो I bought around 1,500 की प्राइस पे at average price of 168 shares, right, in September 2020. and आपको पता है मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू was 10,15,000 at the peak when Tata Elxsi was trading at around 10,000 rupees. Have you heard of this stock? First of all, let me know in the comment section. Yeah, definitely. And I want to ask a question to all of you. आप सब ने इस स्टॉक को या फिर कई और स्टॉक्स को भी अपने सामने से पूरे कोविड के फेज में देखा होगा ग्रो कर रहे हैं, राइट. 1,000 से 2,000 हो रहा है, 2,000 3,000 हो रहा है, उससे 4,000 5,000 6,000 तक पहुंचा है, राइट. बट 99% ऑफ यू वर नॉट एबल टू टेक द एक्शन एंड फॉलो द एंटायर जर्नी. एंड द रीजन बीइंग बिकॉज यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस. कि स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं था स्टॉक में इन्वेस्ट करने का. एंड आई बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस थ्रू द
in-depth research on the conference calls of the company, and I'll tell you what conference calls are. Okay, so let me tell you about my journey. Right now, just imagine 2 लाख की कैपिटल पे when I was investing that company. आपको पता है पिछले 2 साल के अंदर आई हैव फेस्ड 25% ऑफ करेक्शन मल्टीपल टाइम्स इन द स्टॉक. कैन यू इमेजिन स्टॉक 2.5 लाख से मेरी इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख होती है एंड एक हफ्ते में 3 लाख वापस आती है. कैन यू इमेजिन द पेन दैट आई मस्ट बी गोइंग थ्रू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. रातों को नींद नहीं आती थी यार. पैसे मेरे थे, मेरे पापा के थे. वो स्टॉक फिर 4 लाख से 5 लाख हुआ, एक हफ्ते में वापस 5 लाख से 4 लाख आया. क्योंकि ऑफकोर्स मार्केट्स आर वॉलेटाइल एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका कन्विक्शन, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है. भले कितनी भी अच्छी कंपनी हो ना, यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू होल्ड दैट स्टॉक. एंड उस पॉइंट पे काम आते हैं मेंटोर्स इन योर लाइफ. एंड दैट वाज अ पॉइंट जहाँ पे आई वॉज बीइंग बैक्ड बाय हर्ष एट सर कि यार यश, this is the cycle. You have to understand कि stock is a volatile, stock market is a volatile thing. You have to run the cycle, right? And that's how I was able to hold the entire stock through that journey, right? And if you still see now, I'm still holding 100 shares of the stock Tata Elxsi at current price, right? I sold some of the shares at around the peak. Taki, of course, when you are investing in company now, you need to book some profits also, right? To actually keep some of the amount aside to buy the stock at later point of time once the cycle is repeating itself. And now the stock has fallen around 40 to 45% from the peak, right? And I'll also tell you the reason why I'm not actually exiting the stock right now. Why? Because you have to understand, if आपने कल राहुल सर से सीखा मार्केट साइकिल्स क्या होती है. वी आर अभी भी 4 साल पूरे बुल रन के बच्चे हैं, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइकिल्स ना, द स्टॉक मार्केट इज नॉट गोइंग टू क्रैश एनी टाइम सून, राइट? सो दैट फॉर श्योर. एंड सेकेंड थिंग, व्हाट टाटा एल्क्सी फॉल, आई नो आप सबका एक्चुअल एक्सपीरियंस रहा होगा कि आप क्वेश्चन रहा होगा कि टाटा एल्क्सी फॉल कैसे हुआ. द ओनली रीजन बिकॉज द एंटायर IT सेक्टर वॉज फॉलिंग, राइट? सो व्हेन द सेक्टर इज फॉलिंग ना, दैट मीन्स द वो साइकिल सेक्टर में रिपीट हो रही है. द स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, द स्टॉक इज एक्चुअली परफेक्ट एंड साउंड, राइट? इट्स जस्ट द सेक्टर ओवर था, वहाँ पे साइकिल रिपीट हो रही है. एंड आई शो यू माई रियल ट्रेड्स. दीज आर द ट्रेड्स दैट आई टुक from September 2022 till Feb 2021. मेरे पास 2 डीमैट अकाउंट थे. दिस इज from only 1 डीमैट अकाउंट, and this is my holding breakup, and you can see the gains here, right? So I sold some shares, and मेरे पास अभी भी around 6.12 lakhs की इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है, it's all the profit that I'm actually running right now. My investment amount I have withdrawn, right? And some of my investments of Tata Elxsi are in this separate demat account. Okay. So just to show you the proof, because I know a lot of people might be asking about proof, right? Because लोग जल्दी से विश्वास करते नहीं आज के टाइम पे, right? So that's for that. And now I'll tell you how I got the confidence in the stock. मैं आपको बताता हूँ, 2 साल बाद जब मैं उस दोस्त से मिला ना, वो स्टॉक 10,000 रुपये उसने खरीदे थे, राइट? एंड ही सोल्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट जब वो डबल हो गए. अब मेरे पास आया, यार यश स्टॉक तो 8-9 हज़ार का हो गया, मैं क्या करूँ, मेरे को बड़ा रिग्रेट हो रहा है, वापस लेना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा तूने बेचा क्यों? कह रहा मेरे को डर लग रहा था कि गिर जाता. तो मैंने कहा डरने की क्या बात है, कंपनी अच्छी है, ग्रो कर रही है तो लगे रहो. एंड ही वॉज लाइक तूने भी तो बेच दिया होगा. मैंने कहा नहीं. तो वॉज लाइक ही वॉज एक्चुअली शॉक कि यार तेरे 2 लाख ऑलमोस्ट 10 लाख से ऊपर हो चुकी है, तूने बेचा नहीं? मैंने कहा नहीं. कह रहे क्या बात कर रहा है यार, एक हार्ले डेविडसन ले लेता. आई वॉज लाइक व्हाई शुड आई सेल दैट? अगर मेरे को बिजनेस अच्छा लग रहा है, कंपनी अच्छा काम कर रही है एंड साइकिल इज एक्चुअली परफेक्ट, व्हाई शुड आई सेल द स्टॉक? एंड ही वॉज कंप्लीटली शॉक्ड. एंड द रीजन व्हाई आई डिडंट सेल, because I had a tool called conference calls. Conference calls के बारे में किसी ने सुना है आज तक? Please let me know in the comment section. No. Okay, I'm gonna sing no. Okay, no problem. कल सुना है, okay, कल ही सुना है, okay, ठीक है. I'll tell you what are conference calls. So basically क्या होता है, जो भी लिस्टेड कंपनी होती है ना, every quarter जब 3 महीने हो जाते हैं उनको रिजल्ट के साथ, दे नीड टू इंटरेक्ट विद द इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पर्टिकुलर फंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, राइट? जहाँ पे अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कम टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द बिजनेस फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ओके. एंड वहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट को जज करते कि आप क्वेश्चन को कैसे आंसर दे रहे हैं, और ऑन दैट बेसिस दे मेक द डिसीजन वेदर दिस कंपनी इज एक्चुअली डूइंग गुड और नॉट. कॉन्फ्रेंस कॉल से आपको क्या होगा, हेल्प होगा कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स, इसकी फ्यूचर प्लान्स क्या है, मैनेजमेंट में ऑनेस्टी कितनी है, एंड क्या मैनेजमेंट एक्चुअली जो बोल रहा है, प्रॉमिस करेगा, वो एग्जीक्यूट कर रहा है. एंड दैट्स व्हाट अ कॉन्फ्रेंस कॉल्स, ये आपको सारा डेटा देती है. एंड व्हाट आई डिड, मैंने टाटा एल्क्सी की 8 साल की कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ डाली सारी की सारी.
एंड आई वॉज एक्चुअली शॉक कि जो 5 साल पहले मैनेजमेंट ने बोला, जो प्रॉमिस किया, दे वर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग दैट. प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, कंपनी की सेल्स बढ़ी थी एंड वो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट आ रहा था. एंड दैट वॉज द रीजन आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट कि मैनेजमेंट अगर 5 साल से इतना अच्छा कर रहा है, कंपनी 30 साल पुरानी है, तो अगले 5-10 साल भी कंपनी के बहुत अच्छे होने वाले, बिकॉज द फ्यूचर इज ऑल द इलेक्ट्रिक. एंड टाटा एलेक्सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, IT टेक्नोलॉजी, इन सब पे काम करती है. एंड आई गॉट अ रियली ग्रेट इनसाइट फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस कॉल. ये कॉन्फ्रेंस कॉल है 2017 की 27 जनवरी की, राइट. अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, इफ यू कैन सी दैट, इसमें एक पर्सन ने मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा कि कि आप एक्चुअली कंपनी करती क्या है. एंड द मैनेजमेंट गेव एन रियली गुड आंसर कि हम लोग तो हर चीज़ मिला के ना, डॉट द कंपनी डज इज बेसिकली दे आर एक्चुअली नीश कंपनी, राइट. दे आर IT कंपनी बट दे एक्चुअली हेल्प ऑटोमोबाइल कंपनीज, राइट, टू एक्चुअली डेवलप सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विच इज समथिंग वेरी न्यू और जो कोई और कंपनी कर नहीं रही है. एंड द मैनेजमेंट मैंशन इन दिस कॉल की टाटा एलेक्सी कंपटीशन सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली में दिस जो ये बिजनेस में है ना, इनको हर चीज़ से डिफ्रेंशिएट करता है. एंड दैट वॉज अ रियली ग्रेट इनसाइट फॉर मी, बिकॉज विप्रो, IT, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, इन सारी कंपनी से टाटा एलेक्सी कंपटीशन है ही नहीं, बिकॉज देर एक्चुअली नॉट एन प्रॉपर IT कंपनी बट देर एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर कंपनी. एंड दैट्स फॉर एक्चुअली गिव मे कॉन्फिडेंस कि यार टाटा एलेक्सी का कंपटीशन कंपनी से है ही नहीं. दैट इज द रीजन आई वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, राइट. Similarly, go to, if you read this, the screen is visible, right? Can you read the things, right? Okay, I need to zoom it a little bit. Okay, got it. Zoom in. Okay, so मैं आपको बार पढ़ के बता देता हूँ, राइट. सो मधुकर देव जो टाटा एलेक्सी के टॉप लेवल मैनेजमेंट के ये वन ऑफ द कोर बोर्ड मेंबर्स हैं. उन्होंने बोला कि वी आर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी लेड सर्विसेज कंपनी दैट रियली डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम एवरीबडी एल्स, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली. ओके, वी आर an integrated design technology services. There, if you take auto for example, we are certainly see KPIT, which is the our direct competitor. So KPIT जो कंपनी है टाटा एलेक्सी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है. इसके अलावा कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं इंडिया का टाटा एलेक्सी का. एंड सिमिलरली वे आई हैव फर्दर मोर इनसाइट्स ऑन द कंपनी, राइट. And we are so just short on time, so I won't be able to repeat everything, but I'll tell you conference call is something now that will actually, it's a gold mine of information, and I'll actually tell you, help you कि आपको conference call मिलती कहाँ से है. So just let me Google it. Okay, I'll just search Tata Elixir on Google. First of all, we have to go to the company website. ओके, नाउ आई टेल यू, यहाँ पे ना एवरी लिस्टेड कंपनी का आपको कॉन्फ्रेंस कॉल का डेटा मिलेगा. यू जस्ट हैव टू गो टू दैट कंपनीज वेबसाइट, गो टू द इन्वेस्टर्स सेक्शन, एंड देन यू कैन फाइंड ऑल दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, एंड यू कैन, इफ यू कैन सी हियर, मैं हैव मार्क्ड इट, हाईलाइटेड इट, FY23 ट्रांसक्रिप्ट ऑफ Q2 अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल. यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल गई कॉन्फ्रेंस कॉल की. इफ़ यू सी, मैंने क्लिक करा है, ये रहा सारा डेटा. एंड आपको पूरे 8 से 10 साल का ये पूरा डेटा मिल जाएगा, राइट. एंड आई नो थोड़ा मेहनत लगेगा बट बहुत मज़ा आएगा, दैट्स फॉर श्योर. व्हाट यू हैव टू डू इज ना, जस्ट गो थ्रू दीज डेटा, राइट. एंड एटलीस्ट 3 से 5 साल का कॉन्फ्रेंस कॉल का डेटा पढ़ो किसी भी कंपनी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो. सो व्हाट्स द स्टेप, फर्स्ट सेलेक्ट योर स्टॉक फ्रॉम द फिल्टर जो हमने सिखाया आपको, राइट. रेशियोज एनालाइज करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ो, राइट. एंड देन गो टू द कॉन्फ्रेंस कॉल, ट्रांसक्रिप्ट पे जाओ, राइट. एंड एटलीस्ट रीड 3 to 5 years ऑफ कॉन्फ्रेंस कॉल. एंड ट्रस्ट में फिर आपको जो कंपनी के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होगी, जो आपको मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वही आपको कॉन्फिडेंस देगी अपने इन्वेस्टमेंट पे और अपने ट्रेड्स पे. सो दैट वॉज माई एंटायर जर्नी गाइस, एंड आई एम रियली grateful that I was able to share my journey to all. And first of all, I'd like to first of all thank my mentors Harsh and Aditya Gola sir, because ये जर्नी उनके बिना, उनके मेंटरशिप की गाइडेंस के बिना पॉसिबल नहीं होती. बिकॉज आई वॉज वंस अ स्टूडेंट यार 4 साल पहले, एंड आई कुडंट हैव इमेजिन टू बी वर्किंग विद माई मेंटर्स एज अ कोर टीम मेंबर at the age of 21, and right now I am earning what most MBA graduates have उनका भी इतना पैकेज नहीं लगता है. So that's how the stock market entirely changed my life.
and I just feel blessed that I was part of Gola School of Finance as a student and as a co-team member also. So thanks a lot for you guys. Thanks a lot everyone for your patience, and I hope you like this session. Thanks, sir. How was it? If it was great, comment box में great लिख के बता दो.